नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे, जहां पे मैं अपना रिएक्शन उन खबरों पे, उन वीडियोस पे देता हूं जिससे आपका और मेरा सीधे साहूकार होता है या हमारे आने वाली जनरेशन का साहूकार होता है वर्ल्ड लेवल पे। एक ऐसा वीडियो वैल्यूटेनमेंट चैनल ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, जिसका शीर्षक है व्हाई चाइना फियर्स इंडिया बीइंग द नेक्स्ट सुपर पावर। इसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से डेटा की मदद से ये बताया है कि चाइना और इंडिया में क्या डिफरेंशिएट है, कौन सा किस सेक्टर में सबसे आगे है, कौन सा किस सेक्टर में पीछे है, और चाइना को ऐसा क्यों लगता है कि वो इंडिया उसको पीछे कर सकता है आने वाले कुछ सालों में। ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से ये बताया। मैं ये वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन देना चाहूँगा। मैंने ये वीडियो थोड़ा-सा पहले देख लिया है, तो मुझे लगा कि ये वीडियो इतना अच्छा है कि आप लोगों के साथ भी मेरा रिएक्शन साझा करना चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो की तरफ चलते हैं और इस वीडियो पे मेरे रिएक्शन को देखते हैं। You ever wonder why China fears India and respects India? Why is it that India has 100 apps that China has that they don't allow in India? India doesn't allow TikTok to be there. America's okay with it. Why is India saying no to China? That's a form of rejection, right? So we went and looked at around 30 different markers comparing China versus India. When you see some of these numbers, you're going to say, no, the edge on this goes to China, the edge on this goes to India. But eventually you're going to see this is the one area where India can come up and maybe, just maybe, beat China. All right, so if you give value out of this video, give it a thumbs up and subscribe to the channel. Let's get right into it. I'm going to show you data like population, age, teacher, ports, airports. We're going to talk about every single thing, pretty much every single thing between China and India. And some of these numbers are going to shock you on who's got the edge. So let's get right into it. All right, let's start from the top. Population-wise, the difference is only 100,000. India just passed up China. Here's what it looks like. China is at 1.425 billion, 671,000 people, while India is 1.425 776,000, barely having bigger population than China. So the edge अच्छा, ये वीडियो 5 महीना पुराना है, तो हमने क्रॉस कर लिया, हम नंबर 1 हो चुके हैं। India 28.7 years old. The edge there goes to India. Life expectancy, male in China they live up to 75. In India they live up to 66. The edge goes to China. Female in China live up to 81. In India, 69. Again, edge goes to China. Net migration rate, when it comes down to China, they're actually negative 0.11%. That means people are leaving. But if you look at India, they're actually positive 0.12%. People are moving to India. Again, the edge there goes to India. इस डेटा का मतलब था कि चाइना से लोग अब छोड़ के जा रहे हैं और इंडिया की तरफ लोग आ रहे हैं, और ये सही में हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी फॉरेनर्स जो हैं वो अभी इंडिया आना चाह रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट के वजह से आना चाह रहे हो, चाहे वो इंडिया में इस्टेब्लिश होना चाह रहे हो। अब आपने हाल ही में देखा कि एप्पल ब्रांड भी अब इंडिया में आ गया है, चाइना से निकल के वो भी इंडिया आ गया है। और एप्पल है क्या ऐसा, मतलब मेरे हिसाब से एप्पल जो बिज़नेस इंडस्ट्री है उसमें ऐसा एक नाम है कि एप्पल जो पहला स्टेप लेता है और उसके पीछे पीछे बाकी सब स्टेप लेने लग जाते हैं। जैसे होता है ना कि एक सुंदर भेड़ को आगे चला दिया जाए तो पीछे पीछे सारी भेड़ें आने लग जाती हैं। आने वाले आप टाइम में देखेंगे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज अब इंडिया में आने लग जाएंगी, फॉरेन की, चाइना से निकल के, और वो इंडिया में आने लग जाएंगी। Of land, China 9.6 million square kilometers. India 3.3 million square kilometers. China gets the edge there. Cost of living, if US equals 100%, where do China and India measure against that? China would be 57.58%. India is 27.24%. That's terrible. The edge there goes to China. Average income in US dollars, China $11,880. India $2,150. Again, the edge goes to China. GDP, watch this one here. I got to give you. आपको ये देख के लग रहा होगा यार सब कुछ तो चाइना के फेवर में जा रहा है, इंडिया के पास क्या है। मतलब जहाँ पे आप देखेंगे कि चाइना की इनकम रेट भी सबसे ज़्यादा मिल रही है, ज़मीन भी सबसे ज़्यादा है, हर चीज़ तो चाइना के पास जा रहा है, इंडिया के पास तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो फिर इंडिया सुपर पावर कैसे बनेगा? ये इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ ऐसी इंडिया के पास है जो उसको सुपर पावर बनाने के लिए आगे बढ़ा रही है, और चाइना को इंडिया से डर लग रहा है। ऐसा इंडिया के पास क्या है? जबकि स्टैट्स में तो हर जगह चाइना आगे दिख रहा है, तो इंडिया के पास ऐसा क्या है? ये देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाया है और बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन दी है, बिकॉज डेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। This one to go to 1950,
1990, then today, because there's a whole story behind this thing. In 1950, China's GDP was 100 billion. India's was 50 billion. China was only twice as big as India. But watch what happens 40 years later in 1990. China is 360 billion. India caught up, 326 billion. They're like this of passing up China, but then something happened. China joined the World Trade Organization. Look what happens next. Today, China, $18 trillion. India, $3 trillion. They went from being pretty much tied to now China is 6 times bigger. The edge goes to China. Roadways, 5.2 million kilometers in China, but 6.4 million kilometers in India. The edge here goes to India. ये जो रोडवेज का इसने बताया ना कि रोडवेज चाइना में 5 पॉइंट है और इंडिया में 6 पॉइंट समथिंग है, यानी इंडिया में ज़्यादा है। बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देखने में भले ही थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बट लैंड भी तो देखिए, इंडिया का जस्ट डबल है चाइना, और उसमें भी चाइना की कनेक्टिविटी इंडिया से कम है। तो यानी कि इंडिया अपने छोटे से इलाके में कितनी सारी रोडवेज को कनेक्ट करता है, और यह हाल के कुछ ही दिनों में हुआ है, ये पहले नहीं था। यह हाल के कुछ दिनों में आपने देखा होगा रोड्स कितनी जल्दी डेवलप हो रही है और कितनी अच्छी डेवलप हो रही है। Railroads. China, 96,000 miles of railroads. India, 42,000 miles. Edge goes to China. Airports, China has 214. India only has 82. Edge goes to China. Major ports, this is important because this is import and export. Major ports, China, 34. India, 13. Edge, China. Minor ports, China, 2,000. You ready with India? Only 205. Edge by 10 times goes to China. Let's look at quality of life, because if you're healthy, you can work better, you don't have setbacks, you can go 12 months versus somewhere where you're constantly unhealthy. Out of 100, in China, 69 is the score in quality of life. India, 30. The edge goes to China. Climate, how the weather is. In China, 54. Score. India, 62. Believe it. देखो, ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, बट ये क्वालिटी ऑफ लाइफ किस हिसाब से आप सोच रहे हैं। देखिए, इंडिया की क्वालिटी लाइफ का सिचुएशन अलग है। हम लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि हम लोगों को ये चीज़ें होनी चाहिए और इसके अलावा हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। चाइना में कुछ और है। चाइना में वो चाहते हैं कि उनको ये चीज़ सबके अपने अपने पैरामीटर्स हैं ना। मतलब किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को गाड़ी नहीं चाहिए, किसी को शांत वातावरण में रहना अच्छा लगता है, किसी को सिटीज़ चाहिए। जैसे आपने देखा होगा पिछले हाल के कुछ सालों में चाइना में मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत तेज़ी से वहाँ पे बिल्डिंग बन रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। बट एक न्यूज़ ये भी सामने आई है कि चाइना इतनी जल्दी पैसा खर्चा कर रहा है कि उतने उधर लोग नहीं है, पर वो बिल्डिंगें खड़ी कर रहा है। मतलब उन बिल्डिंगों में रहने के लिए लोग अभी हैं नहीं, पर उसने बिल्डिंग पहले बना दी, जिससे एक परसेप्शन जा रहा है पूरी दुनिया में कि चाइना बहुत जल्दी डेवलप कर रहा है। और वहीं पे इंडिया ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ कर रहा है। ये भी तो एक क्राइटेरिया हो सकता है ना इस डेटा का आगे पीछे होने की वजह से। फिर भी चलिए आगे वीडियो देखते हैं आगे क्या निकलता है। The edge goes to India. Internet users in China, 1,041,000. In India, 613 million. Edge goes to China. But this next part is the one that matters the most. Broadband internet, high internet speed. Look at the difference between China and India. China, 536 million high-speed internet access. India, only 28 million. China's 20 times stronger there. Obviously, the edge goes to China. Healthcare system. Let's look at how many hospital beds per thousand. China, 4.31 beds per thousand. India, 0.53. That's terrible. Again, edge goes to China. Doctors per thousand. China, 1.79. India, 0.78. Edge goes to China. Tuberculosis. ये डेटा कुछ ऐसा है कि हमारे पास 1000 पेशेंट के ऊपर एवरेज आउट किया गया है तो 0.78 डॉक्टर्स हैं। ये सुन के मुझे भी थोड़ा सा अचंभा लगा, बिकॉज हेल्थ केयर सिस्टम को मैं ये समझता हूँ, मेरा पर्सनल थॉट है कि हम काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज से भी ज़्यादा हेल्थ केयर सिस्टम हमारे पास था। क्योंकि कोविड के समय हमने देखा था जब यूरोपियन कंट्रीज़ और ये चाइना ये जब बिल्कुल बिखर से गए थे, इनका हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल चरमरा सा गया था, तब वहाँ पर हमारे इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम फिर भी मजबूत था और कम कैजुअलिटीज़ हमारे देश में हुई थी और जगहों के मुकाबले। नो डाउट हमारे यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, बट और जगहों के मुकाबले हमारे देश में कम कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो और
और भी जो ये बिल्कुल हेल्थ केयर सिस्टम थे बाकी देशों के, वो चरमरा से गए थे। इंडिया के उतने चरमराए नहीं थे। फिर भी ये डेटा शॉकिंग है कि 1000 पेशेंट के ऊपर हमारे पास एवरेज में 0.78 डॉक्टर्स हैं, यानी कि एक डॉक्टर भी पूरा नहीं है। ये शॉकिंग है मेरे लिए भी। 0.55% of people out of 100. In India, 2.1% out of 100. That's 4 times worse. It's a lot of setbacks. Edge goes to China. Education, when it comes down to students per teacher. In China, it's 16-1. In India, 35-1. Again, the edge here goes to China. The next one is to look at how much global money is being invested into their infrastructure as a percentage of their GDP. China, 4.8%. India, 1.1%. Edge goes to China. This next data is insane. This next data is to look at how much cement they use in their country. Ready? China used 7.2 billion tons in 3 years. They used more in 2 years than America used in the entire 20th century. 100 years. That's China. You want to know what India did just in 2022? 355 million tons. This is an area where the edge goes massive to China. Next, main language spoken. ये वही पॉइंट है जहाँ पे ये दिखा रहा है कि सीमेंट कितना यूज़ किया गया। अब सीमेंट क्यों यूज़ करा जा रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन, मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रहा है चाइना में, इतनी रैपिडली और इतनी जल्दी कंस्ट्रक्शन हो रहा है चाइना में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अब जब सीमेंट यूज़ कर रहा है तो सीमेंट फ्री में तो आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने वही बताया कि उन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, बट उसमें रहने के लिए लोग नहीं है, यानी वो कंस्ट्रक्शन तो कर रहे हैं पर उसमें रहने के लिए लोग नहीं है। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट ये भी बता रही है, पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत, पर एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि चाइना जो है समुद्र के बीच में फेक आइलैंड क्रिएट कर रहा है। उसी सीमेंट और चीज़ों का यूज़ करके वो फेक आइलैंड क्रिएट कर रहा है ताकि वो समुद्र में अपने पोर्ट्स बना सके, अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सके। तो वो चाइना ऐसा भी कर रहा है। In China, 81% of the people speak Mandarin. In India, 57% speak Hindi. Now, here's what's crazy about it. China has 300 different languages, but 81% all speak Mandarin, which is good because we can communicate. India only has 120 different languages, but the one main language, only 57% speak. So when I'm doing business with you and I'm communicating, it's kind of tough. Again, edge goes to China. नहीं, ये पॉइंट मेरे को वैलिड नहीं लगता है कि इंडिया में बिजनेस करना किसी भी फॉरेनर के लिए मुश्किल हो सकता है, बिकॉज दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश इंडिया में बोली जाती है। नो डाउट हर कोई परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलता है, बट हमारे यहाँ पे इंग्लिश फिर भी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। टूटी फूटी ही सही, थोड़ी बहुत ही सही, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे साथ कम्युनिकेशन करना इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज हम लोग इंग्लिश जो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट आप किसी भी सराउंड से आते हो, किसी भी तरीके की आप भाषा से आते हो, किसी भी देश में, आपके देश में कोई भी भाषा बोली जाती हो, पर एक ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, और वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। टूटी फूटी बोली जाती हो पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो आपको हमसे कम्युनिकेट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में किसी भी बिजनेसमैन को हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन करने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हो सकती है। एंड मैं इस बात से डिफ़र करता हूँ कि इंडिया में बिज़नेस करना थोड़ा सा मुश्किल है ग्लोबल मार्केट के लिए, ऐसा नहीं है। ऑल्दो हमारे पास लैंग्वेजेस डिफरेंट है, हमारे यहाँ पे हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है, और उस स्टेट के अंदर भी रीजनल लैंग्वेज छोटी मोटी हर एक की अपनी अपनी है। तो ऐसा है, ज़रूर है, ये सही बात है, बट हमारे यहाँ पे आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे हर जगह थोड़ी बहुत इंग्लिश का यूज़ होता है। कुछ लोग कुछ चीज़ों को समझ पाते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। 100% ना बोल सकते हो, बट वो कम्युनिकेशन हो जाता है, बातें समझाई जा सकती है। बिकॉज इंग्लिश हो या हिंदी, इज जस्ट अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज का काम होता है अपनी बात समझाना। तो बातें समझाई जाती हैं इंडिया में और काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कम्युनिकेट कर सकते आप। तो इस बात पर मैं इनसे डिफर करता हूँ। Next, literacy rate. China, 99%. India, 75%. That's a big difference. You know why? Because the more educated your people are, the higher quality jobs they can do to help the infrastructure. If China's 99% and India's 74, 75%, the edge goes to China. But so let me ask you, if you're watching all this and going back and forth, and the edge goes to China, and the edge goes to China. Patrick, I'm from India, Patrick. Jamar, screw you. You can't be saying stuff like this. Totally get it. But do you know what we realize? China has the edge in what area? It's only one thing, if you think about it.
is purely infrastructure. Let me explain to you why. Right. All right, so when it comes down to ease of doing business, China has consistently ranked higher than India on the World Bank's Ease of Doing Business Index, indicating a more friendly regulatory environment for businesses. China today is ranked 32. India is ranked 62 according to the World Bank. Infrastructure, China's advanced infrastructure in terms of transport, logistics, and technology is more developed compared to India, which makes business operations smoother for foreign companies. Manufacturing base, China has positioned itself as the world's factory, attracting investment from companies from around the globe seeking to take advantage of its manufacturing capabilities, established supply chain, and relatively low labor costs. Policy environment, China opened to foreign investments earlier and more comprehensively than India, which was more cautious in its approach to liberalization. Just in 2018, Chinese exports were $2.64 trillion versus India only being half $500 billion. Therefore, India did not experience fast economic growth and poverty rate only dropped slightly more than 10% over the last 30 years. So what does all this mean? Here's what it looks like. If you look at poverty rate in China. देखिए, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि इंडिया में जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉरेन बिजनेसमैन के लिए इतने फेवरेबल नहीं है कंपेयर टू चाइना। चाइना में इतनी सारी कंपनीज़ क्यों जाती हैं, फॉरेन की इतनी कंपनीज़ क्यों जाती हैं? बिकॉज़ एक तो वहाँ पे लेबर काफ़ी सस्ता है, नो डाउट हमारे इंडिया में भी काफ़ी सस्ता है, ऐसा नहीं है किसी वहीं पे सस्ता है, हमारे इंडिया में काफ़ी सस्ता है लेबर, ऐसा नहीं है। बट पॉलिसीज़ वहाँ पे इतनी ईज़ी हैं, वहाँ पे काफ़ी ईज़ी पॉलिसी हैं बिज़नेस करने के लिए कि ज़्यादातर कंपनीज़ वहाँ पे जाती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर इंडिया में कोई भी फ़ॉरेन की कार अगर कार कंपनी आती है तो वो टैक्सेस ही उन कार पे डबल लग जाते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस ही इतने डबल हो जाते हैं कि रेट ऑलरेडी डबल हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में आपने काफ़ी फ़ॉरेन कार कंपनी को देखा होगा जो इंडिया से चली गई हैं, और मारुति का बोलबाला भी इसलिए है क्योंकि बिकॉज़ उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, इसलिए उस पे टैक्सेस इतने लगते नहीं हैं। और वहीं पे आप देखेंगे कि फोर्ड जैसी कंपनी जो पूरी दुनिया में अपना बिज़नेस चला रही है, अच्छे से चला रही है, वो इंडिया में नहीं चला पाई। ऐसा क्या था? इंडिया में ऐसा क्या हो पाया? क्योंकि उनकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग या ज़्यादातर पार्ट्स बाहर से आते थे तो उन पे टैक्सेस इतने लगते थे कि गाड़ी ओवर प्राइस्ड हो जाती थी, जो इंडियन कंज्यूमर को नहीं लगता था। अगर आप उनकी पर आप कंपनी की अगर आप गाड़ियों को देखते हैं उस कंपनी की, तो आपको ये फ़ील होता है यार कि गाड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं। आप इनके देखें कि गाड़ियों में कंफर्ट वाइज देखें, फीचर वाइज देखें, अच्छा सिक्योरिटी वाइज देखें, सेफ्टी वाइज देखें, बिल्ड क्वालिटी देखें, हर चीज़ में तो वो अच्छी थी, फिर वो कंपनी टिक क्यों नहीं पाई? या फिर आप टोयोटा कंपनी को देख लें, वो फॉर्च्यूनर, इनोवा, इसके बाद कोई गाड़ी क्यों नहीं ला पा रही जबकि बाहर में इतनी अच्छी अच्छी उनकी गाड़ियां हैं? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इन पे टैक्सेस इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि इंडिया में वो सस्टेन नहीं कर पा रही। हार्ले डेविडसन जो कि पूरी दुनिया में चल रही है, इंडिया से वो चली गई। तो ऐसा क्या है? क्योंकि इन पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में भी होता है। तो इंडिया गवर्नमेंट को पॉलिसी काफ़ी ईज़ी करनी पड़ेंगी ताकि फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो आ सके, फ़ॉरेन की कंपनियाँ इंडिया में काम कर सकें, ताकि जॉब भी क्रिएट हो और साथ ही साथ में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आए। और ऐसा शुरू हो गया है, ये पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर कंपनियाँ चाइना से माइग्रेट करके अब इंडिया की तरफ आ रही हैं। तो ये शुरू हो गया, फिर भी काफ़ी हद तक हमें काम करने की ज़रूरत है, काफ़ी हद तक हमें इन पॉलिसीज़ में चेंजेस करने की ज़रूरत है, और आई एम श्योर ये आने वाले सालों में शुरू भी हो जाएगा और होने लग गया है। From 1990 till today, China went from 99% poverty rate, that means only 1% in China was doing okay for themselves, to 25%. But during that same period, India only dropped lowered poverty rate by only 10%. Infrastructure. By the way, I want to give you a little bit of credit to India because we have to realize this. If you think about COVID, this is one of the biggest edges India has over China. Think about it. During COVID, what country lost credibility and trust around the world? What's the number one country that lost credibility around the world? It's China. It was so bad that Tim Cook, running Apple, all these iPhones are being made at China. Gradually, he's shifting that over from there to where? To India. Why? It matters that the world trusts India more than they do China. Purely trust. Like, I don't think they're going to do deceptive practices, and China doesn't have the credibility today. But India has to move because this season's not going to last for too long of a time. You have to capitalize on this season. And last but not least, to give credit India को जल्दी-जल्दी काम करने की ज़रूरत है। Credit to. So I want you to look at this chart from World Economic Forum. Look how it compares China to India. You know, we keep talking about the great infrastructure with China, but China's like, oh, we got this money, build it. Do you want me to build it perfectly? No, just build it. Build the building already. Hurry up. Guys, what's going on? Let's go. We got 3 months. But sir, I'm not building. I'm telling you, build. I got to hit my deadline, right? Versus India's like, no, let's build it properly. So even though they build infrastructure faster, sometimes they build it so fast that not all this stuff works well
They destroy it, rebuild it again, versus India did it right. So the edge, if you look at this chart right here, overall quality of infrastructure, blue, India, yellow, China. Quality roads, India gets the edge. Quality railroads, India gets the edge. Quality port, India gets the edge. Quality air transport, India gets the edge. Quality electricity supply, India gets the edge. Overall infrastructure, India gets the edge. Global competitiveness index, India gets the edge. So you know the whole thing between quality and quantity? Quality, India. Quantity, China. There's an edge. Last 6 points for India to be thinking about. Number one, figure out a way to increase your skilled workforce. You have to focus on that through education. Number two, ease of doing business. They can address this. This is purely law and order, regulation. You can deregulate certain areas that's slowing down. It's very, very annoying when regulation is high for business owners. The government controls this. If they want to, they can deregulate many parts of the business. Number three, infrastructure development. We've already talked about this. They know what areas to focus on. Number four, investment incentives. India could consider offering tax breaks, subsidies, and other incentives to companies, both domestic and foreign, to say, you know what, I'm willing to move there. Number five, invest into research and development. The one thing that we have to give credit to India, India has one of the best schools in the world, IIT. It competes with MIT. I've spoken at IIT. Trust me, there's so many different comparisons between those two schools. And a lot of people say IIT's ahead of MIT. So they're investing, they're gradually producing all these engineers. They just got to do a little bit more of it. Political stability and foreign relations. Look, there's some people that hate Modi. There's some people that like Modi. I like Modi. I like the fact that he's been able to do what he's done to India recently. And I like the fact a part of India, you can't push them around. Like, they're not afraid of China. Can you imagine? They're like, yeah, we'll do business with you. 100 apps of yours, not going to be allowed here. You're not going to bully us around. You can bully America. You can bully this guy. You ain't going to bully us. You got to respect a part of what India is doing. But if India can figure out a way to attract more apples, more people to want to start doing business with India and saying, hey, you can trust us. Here's what we're all about. I think it can really start competing with China 10, 20 years later. But we'll see. तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया। अब मोटा मोटा यही बात है कि देखिए, क्वांटिटी में नो डाउट चाइना हमसे आगे है। चाइना काफ़ी मैसिव बिल्डिंग क्रिएट कर रहा है, काफ़ी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, रोड नेटवर्क उसका काफ़ी अच्छा है, रोड नेटवर्क हमारा काफ़ी अच्छा है। अच्छा, पॉपुलेशन वाइज भी हम उससे अब आगे निकल गए हैं, बट फिर भी पॉपुलेशन उसकी तकरीबन इतनी भी कम नहीं है। लैंड उसका अच्छा है, हेल्थ केयर सिस्टम उसका अच्छा है अकॉर्डिंग टू डेटा, सब कुछ बढ़िया है। पर ज़्यादातर वो किस में अच्छा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा क्रिएट कर रहा है, रोड नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, सब कुछ क्रिएट कर रहा है। बट जब बात आई क्वालिटी की, तो क्वालिटी में इंडिया आगे है। मैं ये समझता हूँ कि चाइनीज़ प्रोडक्ट, जैसे हम इंडिया में समझते हैं ना यार, चाइना का माल ना ज़्यादा चलता नहीं है, तो वही सिस्टम है कि चाइना जो है वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, ज़्यादा करो, मैसिव करो, मैसिव करो। उस चक्कर में क्या है, वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता है। और वहीं पे इंडिया जो है वो कम क्रिएट करता है पर क्वालिटी पे ध्यान देता है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे आप देखोगे कि चाइना में बिल्डिंगें बड़ी बड़ी क्रिएट हो रही है, हर चीज़ जल्दी जल्दी क्रिएट हो रही है, पर ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। उसको हर 6 महीने में उसको फिर जाके उसको दोबारा से रिनोवेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वहीं पर इंडिया में स्लो काम होता है पर अच्छा काम होता है, और उसी वजह से क्वालिटी की वजह से इंडियन प्रोडक्ट थोड़े से महंगे तो हैं चाइना के प्रोडक्ट से, पर क्वालिटी भी देते हैं। तो इंडिया के लोगों के बीच भी काफ़ी मिथ रहता है कि यार इंडियन प्रोडक्ट जो है ना वो काफ़ी महंगे हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट थोड़े सस्ते हैं, जैसे हम दिवाली में देखते हैं लाइट्स वगैरह के चक्कर में ना। तो और ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी। पर हाँ, आपको क्वालिटी देखनी है या क्वांटिटी देखनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो क्वालिटी में नो डाउट इंडिया आगे, क्वांटिटी में चाइना आगे। पर लोगों का ट्रस्ट हम पे क्यों है? बिकॉज हम क्वालिटी दे रहे हैं। हम पूरी दुनिया का ट्रस्ट इंडिया की तरफ आ रहा है। पॉलिसीज़ में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को, नो डाउट, और वो कर भी रही है। हर रोज़ प्रयास हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नया हो रहा है। ये कंपनीज़ इंडिया की तरफ आ रही हैं, फ़ॉरेन की इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ आती है, और जब फ़ॉरेन की कंपनीज़ इंडिया आती है ना, तो इससे क्या होता है कि डोमेस्टिक कंपनीज़ जो है उनको भी काम मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर नई जॉब एंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, सब कुछ क्रिएट होता है, और देश के लिए अच्छा होता है बेसिकली। तो ये फ़र्क था इंडिया और चाइना के बीच, इस वीडियो के माध्यम से दिखाया, और वीडियो काफ़ी अच्छी बनाई थी उन्होंने, काफ़ी कुछ जानने को मिला। आशा करता हूँ मेरा रिएक्शन भी आपको पसंद आया होगा। आपका अगर कोई सुझाव है या कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाके बिल्कुल अपने सुझाव को टाइप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।